Now, the third one, the fourth one that we study here. ম্যাম Hmm? ম্যাম এই গ্রিন কালারের যে লেয়ারটা আছে ওটা কি কটলেডেনের কাভার, মানে ওটার কোনো নাম আছে? না 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 না, এই গোটা গ্রিনটা হচ্ছে গিয়ে তোমার কটলিডেন। দিস ইজ দ্য এন্টায়ার কটলিডেন। এটা কভার না, আমি কটলিডেনের শুধু কালারটা দেখাচ্ছি। এই সিড লিভস আমরা বলছি এটাকে। ওকে, এবার ফোর্থ ওয়ান যেটা আমরা পড়ছি সেটা হচ্ছে কি র্যাডিক্যাল। র্যাডিক্যালটা কি হয়? র্যাডিক্যাল ইজ বেসিক্যালি ফিউচার root, gives rise to the future root. How it gives rise to future root, we will study this in sexual reproduction in flowering plants. Gives rise to future root. Okay, and the last one that we study, fifth one, is called as plumule. Plumule gives rise to future shoot. Gives rise to future shoot. Okay, so what are the what are the embryo? Which part is forming the embryo of the seed? These two are forming the embryo. Okay, and embryo also consists of the cotyledons, the embryonal axis and the two cotyledons. This is the embryo. The embryo consists of radical, plumule and cotyledons together. Clear? Okay, nourishes the embryo during development, nourishes the plumule and radicle during development. So cotyledons have food reserves. So they are the ones that are taking part. So this is the structure of a dicot seed. Dicot seed has two cotyledons as we have mentioned. So this is it. Okay. Now if I मैम talk about एम्ब्रायनल एक्सिस कौन सा है? embryonal axis, हम इसको बोलते हैं this plumule and radicle. This is the these two are forming the part of the embryo. These two are considered to be embryonal axis. Okay, plumule plus radicle is the embryonal axis, and along with cotyledons, the entire structure is the embryo. Okay. अब same thing. ओके, अब यहाँ पे आते हैं टू द मोनोकॉट सीड पे। देखो, मोनोकॉट सीड का द फर्स्ट पॉइंट जो है, हम किसको बोल रहे हैं? मोनोकॉट सीड का फर्स्ट जो हम लोग बोल रहे हैं कि वो है सीड कोट प्लस पेरिकार्प, सीड कोट प्लस पेरिकार्प फ्यूज्ड। जो फर्स्ट लेबलिंग है वहां पे है कि सीड कोट और पेरिकार्प को फ्यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियल्स जो होते हैं ना, मेज and the rice and all, their pericarp and seed coats are completely fused. तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि कौन सा पेरिकार्प है कौन सा सीड कोट है। तो ये सीरियल्स में हम लोग जनरली देखते हैं, seen in case of cereal crops, seen in case of cereal crops like maize। और ये क्या होता है? मेम्ब्रेनस होता है। ओके, तो दिस इज लाइक मेम्ब्रेनस। अच्छा, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द सेकेंड वन we talk about is the alluron layer। ठीक है,
It is called as the alluron layer. Now, this alluron layer is the outermost covering of the endosperm and it is proteinaceous in nature. So, alluron layer, outermost covering of endosperm and is proteinaceous. ठीक है? So alluron layer, I think alluron storage we have already studied in types of leucoplast like alluroplast, alioplast. तो एक क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकता है कि alluron लेयर जो होता है उसमें कौन से टाइप का प्लास्टिड होता है, ठीक है? दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इन रिलेशन टू सेल. तो आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि इसका प्लास्टिड क्या है. इसका प्लास्टिड है alluroplast या फिर उसको बोल सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. फिर आता है हम लोगों का ये थर्ड पार्ट विच को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म. तो मोनोकॉट्स तो जनरली आर एंडोस्पर्मिक सीड्स. मोनोकॉट्स आर endospermic. Okay. Now endosperm stores food reserves and nourishes the developing embryo. Endosperm stores food reserve and nourish developing embryo. ठीक है. तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट. अब फोर्थ वाला यहाँ पे दिखा रहा है. फोर्थ इज अनदर कॉटिलिडन. ठीक है. सिंगल कॉटिलिडन को हम लोग फोर्थ वाला पार्ट बोलते हैं बिकॉज मोनोकॉट्स आर वन कॉटिलिडन, राइट. फोर्थ वन इज अ single cotyledon, generally monocot feature. And in case of here, if we talk about Poaceae family or maize, okay, we say ki the single cotyledon is large and shield shaped and is called as a scutellum. Okay, single cotyledon, shield shape, large and known as scutellum. Okay, so this is your single cotyledon which is a characteristic feature of monocots. अब फिफ्थ वन क्या है? फिफ्थ वन हम लोग बोलेंगे कोलियोप्टाइल. कोलियोप्टाइल इज बेसिकली these are basically sheets, membranous sheets that cover the plumule of the embryo. Okay, तो ये वाला आप लोग लिख लो. उसके बाद आई विल एक्सटेंड टू द नेक्स्ट पेज. मैम स्क्रीन तो ब्लैक हो गया. Black. Everybody, can you see the screen? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मैम देन कैन वी रिजॉइन करो. হ্যাঁ একবার রিজয়েন করতো. मैम मैम सारे मोनोकॉट सीड्स के कॉटिलेडोन को स्क्यूटेलम बोलते हैं क्या? नहीं, सारे को नहीं बोलते हम लोग. जनरली ग्रास फैमिली जो होता है मेज या राइस का, राइस में तो वैसे हम लोग देखने से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मेज का जो होता है ना उसमें हम लोग बोल सकते हैं स्क्यूटेलम. तो जनरली ग्रास फैमिली में ही होता है. सारे के उसको हम लोग स्क्यूटेलम नहीं बोलेंगे. यहाँ पे एनसीईआरटी में भी जो तुम्हारा सीड दिखाया है ना वो मेज का सीड दिखाया है. ठीक है. तो ये ग्रासेस के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है. यस मैम. एनसीईआरटी में दिया है मेज का सीड. वो मेज का सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है सारे मोनोकॉट्स का सीड. तो उससे तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हर मोनोकॉट में तो स्क्यूटेलम नहीं होता है, या कोलियोप्टाइल या कोलियोराइजा बोल के कॉन्सेप्ट नहीं होता है. कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा कॉन्सेप्ट हम लोग ग्रासेस में देख सकते हैं. ठीक है. वो जैसे हम लोग पढ़ते थे ना एवेना कर्वेचर टेस्ट, जिसमें हम लोग कोलियोप्टाइल्स लेते थे. एवेना कोलियोप्टाइल्स बोल रहे हैं हम लोग.
ম্যাম সিড কোটে যে হাইলামটা থাকে ওটা মরফোলজি এই ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসে পড়বো নাকি? মরফোলজি হাইলামের ব্যাপারটা তো তোর ওই ইয়েতে পড়বি, মানে জেনারেলি হাইলাম ইজ বেসিক্যালি পয়েন্ট অফ অ্যাটাচমেন্ট বিটুইন দি ওভিউল অ্যান্ড দ্য স্টক অফ দি ওভিউল, পিউনিকল বলে ওটাকে। ঠিক আছে, তো সিডের তো অনেক ঠিক পার্ট আছে ম্যাম। আছে। সিডের মাইক্রোপাইল থাকে, মাইক্রোপাইলটা হেল্পস ইন জার্মিনেশন অফ দ্য সিড থাকে। তারপরে সিডের হাইলাম ব্যাপারটা যেটা থাকে ওই সিড কোটের মধ্যেই মাইক্রোপাইলও থাকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হাইলামও থাকে। তো হাইলাম যেটা আছে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ অ্যাটাচমেন্ট between the seed and the funicle or stalk of the ovule. আর মাইক্রোপাইল হচ্ছে কি বেসিক্যালি দি ওপেনিং অফ দি ওভিউল, যেখান দিয়ে পোলেন টিউব এন্ট্রি করে during sexual reproduction. And once the seed has been formed, then micropyle helps in the germination of the seed because it allows the entry of air and water which is required for germination. ঠিক আছে, ওটা তো আলাদা করে পয়েন্টস লিখে দেবো কি সিড কোটের কিছু পয়েন্টস আছে। জেনারেলি আমি এখানে ডাইকট এন্ড মনোকটকে অ্যাজ আ কম্পারেটিভ ইয়ে করছি। তারপর তো দের আর সার্টেন আদার ফিচার্স অফ দ্য সিড কোট। তো প্রচুর জিনিস আছে, এপিকটাইল আছে, হাইপোকটাইল আছে। এপিকটাইল ইজ a region of meristematic zone which divides continuously to produce the future shoot. ঠিক আছে, তো এইসব ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি ইন ডিটেল ইট ইজ বেটার টু স্টাডি ইন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। আচ্ছা, দিস ইজ ডান। Yes, ma'am. আচ্ছা, নেক্সট দ্য ফিফথ। হ্যাঁ, ফিফথ এখানে যেটা আমি এখানে কন্টিনিউ করছি মনোকট সিডে। ওকে, the fifth part, this is monocot seed continuation. We have coleoptile. Now the monocot seed they have given is obviously of maize, so coleoptile is based membranous sheath, covering the plumule, that is the future shoot. Then sixth one is the plumule. We have already studied plumule. Plumule is basically future shoot, gives rise to the future shoot. Then the seventh one is called as radicle, that gives rise to the future root. And then eighth one is called as your coleorhiza, membranous sheath covering the radicle. Membranous sheath covering the radicle. तो these are your things. तो embryonal axis किसको बोलेंगे? कोटिलिडन्स को बोलेंगे एंड प्लूम्यूल रेडिकल को बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, a plumule radical will form the major part of the embryo. Okay, so embryo is cotyledons, plumule and radical. Embryonal axis हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सिर्फ plumule and radical को। Okay, this is embryonal axis. इस embryonal axis में there is other two structure जो यहाँ पे mention नहीं किया NCERT में, उसको बोलते एपिकॉटाइल एंड हाइपोकॉटाइल। ठीक है, तो वो भी एक चीज है, लेकिन वो एपिकॉटल हाइपोकॉटल मेंशन नहीं है बोल के नहीं लिखा रही हूँ, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखाऊंगी। तो दिस इज अबाउट योर एंटायर डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड। नाउ अदर फीचर्स ऑफ सीड में अगर देखें तो वहां पे आपका होता है, एक होता है हाइलम, ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट of ovule to funicle or stalk of the ovule, funicle or stalk, ठीक है, present as a scar, ठीक है, मतलब सीड में स्कार की तरह रहता है, उसका कोई फंक्शन एज सच नहीं है। सेकेंड इज माइक्रोपाइल,
A pore present on the seed coat, a tiny pore that allows entry of air and water for germination. Air and water for germination. ये है. अरे और एक फीचर ये चलो यहाँ पे लिखा देते. थर्ड है एपिकॉटाइल. एपिकॉटाइल इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस. ओके. एपिकॉटाइल क्या है? प्रेजेंट बिलो प्लूम्यूल. बिलो प्लूम्यूल. मेरिस्टेमेटिक region. Meristematic region helps in the growth of the plumule. Helps in growth of plumule. ठीक है, ये एक एपिकॉटाइल. चौथा वाला है हाइपोकॉटाइल. प्रेजेंट अबव रेडिकल. प्रेजेंट अबव रेडिकल. ओके. मेरिस्टेमेटिक region. Meristematic region helps in growth of radical. Growth of radical. तो ये जो दो पार्ट है, they form the part of embryonal axis along with plumule and radical. ठीक है. And hilum and micropyle they form the part of seed coat. ये एक्चुअली सीड कोट के पार्ट्स है. सीड कोट. तो ये हो गया पूरा सीड का डिस्क्रिप्शन. ओके. अब और एक है टाइप्स ऑफ सीड्स हम लोग पढ़ते बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूसेलस. न्यूसेलस वाज द न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ द ओव्यूल ऑफ द एम्ब्रायो सैक. अब वो अगर रह गया सीड में तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरिस्पर्मिक सीड. सीड को. ओके. सो फिनिश दिस पार्ट, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Done, everyone? Yes, ma'am. Yes. ओके. चलो नेक्स्ट, अगर हम लोग बोले टाइप्स ऑफ सीड्स. टाइप्स ऑफ सीड्स. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म प्रेजेंस. एंडोस्पर्म प्रेजेंस और एब्सेंस. ओके. Absence and perisperm presence. तो जब यहाँ पे आएंगे तो ये एंडोस्पर्म प्रेजेंस और एब्सेंस में दो टाइप का सीड दिखता है. एक होता है एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं इसको. एल्ब्यूमिनस सीड्स. दूसरा है नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. And here perisperm is perispermic seed.
तो डिस्क्रिप्शन तो आई डोंट हैव टू गिव यू, डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली वेरी अंडरस्टैंडेबल कि एंडोस्पर्म जिस सीड में परसिस्टेंट है, तो एंडोस्पर्म persistent, endosperm persistent in mature seed, okay, and here endosperm not persistent, endosperm not persistent, okay, in mature seed. इसमें होता है कि nucellus nutritive tissue of the ovule persistent, nucellus, that is the nutritive tissue of ovule is persistent in seed, okay. Example of endospermic seed क्या क्या होगा? Monocot families, okay, most monocots, okay, जो भी नाम लिखना है, राइस, व्हीट, मेज, okay, and exception most monocots, Solanaceae family, Solanaceae, Malvaceae family, ये हम लोग पढ़ेंगे। Malvaceae, Solanaceae में एंडोस्पर्मिक सीड होता है। And then example here, most dicots, okay, some monocots like orchids have non-endospermic seed। और यहाँ पे एग्जाम्पल होगा पेपर, ब्लैक पेपर, ओके, बीट रूट का सीड होता है पेरिस्पर्मिक, ब्लैक पेपर एंड बीट रूट। तो ये हो गया टाइप ऑफ सीड। So with this, we are done with the entire this part of morphology types and whatever parts of the flower and stem and shoot is there. Now we will come to the families. मैम एक बाकी है ना, कैस्टर। कैस्टर का तो तुम्हारा वो ये हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या कैरंकल एंड ऑल है। और कैस्टर का तो यहाँ पे तो जनरली हम लोग पेरिस्पर्म का ही पढ़ते हैं, कैस्टर का तो पढ़ते नहीं है। लेकिन आप कैस्टर को तो बोल, एनसीईआरटी है ना, कैस्टर में तो आप बोल ही सकते हो कि वो एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक सीड में आता है। कैस्टर इज अ एग्जांपल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड, यहाँ पे लिख लो कैस्टर। डन? Yes, ma'am. Yes. ओके, चलो नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग फैमिलीज पे। तो इसको कैसे करना है बता दे रही हूँ। फैमिलीज है ना, तो पहले हम लोग कुछ डाइकॉट फैमिलीज का लेते हैं। जैसे पहले लेट अस स्टार्ट ऑफ विद ब्रासिकेसी। हम लोग ब्रासिकेसी लेते हैं हम लोग। तो सबके अभी व्हाट यू कॉल मॉड्यूल्स है आपके पास? यस मैम। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, क्रिएट अ चार्ट वाइज ही हम लोग ये क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं ब्रासिकेसी। अच्छा एक मिनट, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे जनरल फीचर्स जो है, ये एक चार्ट होगा जनरल फीचर्स। यहाँ पे फैमिली का पहले लिखते हैं ब्रासिकेसी, ठीक है। लेग्यूमिनोसे, लेग्यूमिनोसे में हम लोग ऑब्वियसली फैबेसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक है नेक्स्ट वी विल राइट अबाउट इज सोलानेसी। ओके, पहले ये तीनों के फैमिलीज हम लोग करेंगे।
फीचर्स को कैसे करना है। वेजिटेटिव फीचर्स में फर्स्ट वी राइट की वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो इसके है ऐसा करके लिख सकते हो, बट जनरली मैंने फ्लोरल कैरेक्टर्स से वो क्वेश्चन पूछता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर का वैसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ पे। वी हैव टू फोकस मोर ऑन फ्लोरल, तो हम लोग फ्लोरल का ही करेंगे यहाँ पे। वेजिटेटिव का वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द मॉर्फोलॉजी पार्ट ओनली, कौन कौन सा क्या वेजिटेटिव है। फैबेसी का वेजिटेटिव टेंड्रिल्स फॉर्मेशन करना, ओके, विच इज अ टाइप ऑफ स्टेम, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ब्रासिकेसी में हम लोग पढ़ते हैं फिलोटैक्सी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर सिंपल लीव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ दिस थिंग। तो जनरल फीचर्स में लेट अस टॉक अबाउट फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट आएगा कि इनफ्लोरेसेंस क्या है, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। तो ब्रासिकेसी का इनफ्लोरेसेंस है, व्हाट इज द इनफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रासिकेसी, इसको बोलते हैं रेसिमोस। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस ब्रासिकेसी का है। एंड अगर हम लोग फैबेसी का पढ़े तो फैबेसी का इनफ्लोरेसेंस भी रेसिमोस है, ओके। एंड अगर हम लोग सोलनेसी का पढ़े, सोलनेसी का क्या इनफ्लोरेसेंस है, सोलनेसी का इनफ्लोरेसेंस होता है आपका सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस। सॉलिटरी और एक्सिलरी और साइमोस, क्लियर, ये हो गया इनफ्लोरेसेंस पहला आ गया, ठीक है। सेकंड जो कैरेक्टर हम लोग फ्लावर का पढ़ेंगे कि फ्लावर कैसा है, फ्लावर, ओके, फ्लावर कैसा टाइप का है। तो उसमें ब्रासिकेसी का फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल, टेट्रामेरस। हाँ, बाइसेक्सुअल, टेट्रामेरस, उसके साथ साथ हम लोग बाइकार्पलरी सिनकार्पस भी बोल सकते, एक्टिनोमॉर्फिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का क्या फॉर्मूला है, ऐसा, तो ऐसा लिख लेंगे। जब बोले कि एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक बिकॉज फ्लोरल फॉर्मूला में हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक पढ़ेंगे तो ये ऐसा सिंबल दिखाता है। टेट्रामीरस है, टेट्रामीरस, क्योंकि हम लोग सी को 4 ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, टेट्रामीरस, ये हो गया बेसिकेसी का एग्जांपल, ओके। अगर हम लोग अभी फैबेसी का पढ़े तो क्या होगा, फैबेसी का बाइसेक्सुअल है, ठीक है। पेंटामेरस। हाँ, पेंटामेरस है, वेरी गुड। पेंटामेरस कौन सा एस्टिवेशन दिखा रहा है वो एक्चुअली, तो सी हम लोग 5 ऐसा सी का हम लोग कैसे फ्लोरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, 1+2+2 ब्रैकेट, ऐसा ना, पेंटामेरस 5 फ्लावर्स। और ये दिखा रहे हैं जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक मतलब वो परसेंटेज साइन टाइप, ठीक है। ये हो गया फ्लावर। तो आपको फ्लावर के साथ साथ फ्लोरल फॉर्मूला भी बता दे रही हूँ फ्लावर का, तो इधर ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग सोलनेसी में आए तो सोलनेसी का भी फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा, पेंटामीरस होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। बाइसेक्सुअल, ठीक है, पेंटामीरस। अब पेंटामीरस जब हम बोल रहे हैं तो पेंटामीरस मतलब यहाँ पे गैमोसेपेलस कंडीशन आ रहा है, सॉरी गैमोपेटालस कंडीशन आ रहा है। एंड जाइगोमॉर्फिक हम लोग यहाँ पे बोले एक्टिनोमॉर्फिक, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, मतलब सिंबल ऐसा हो जाएगा। तो फ्लावर का सिंबल हो गया, राइट। अब आते हैं हम लोग केलिक्स में, ठीक है। केलिक्स में हम लोग अगर देखें तो केलिक्स क्या है, इधर सेपल्स कितने हैं, 4। तो केलिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, K is 2+2। और केलिक्स का एस्टिवेशन क्या दिख रहा है, केलिक्स का एस्टिवेशन दिख रहा इम्ब्रिकेट है, एस्टिवेशन। हाँ, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वेरी गुड, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और एक चीज है, केलिक्स क्या फ्यूज्ड है कि फ्री, पॉलीसेपेलस है ना, पॉलीसेपेलस, यस यस, पॉलीसेपेलस कंडीशन, मतलब यही वाला कंडीशन है, देयर इज नो ब्रैकेट हियर, ठीक है। अगर हम लोग आते हैं अभी फैबेसी मेंबर में, सेपल्स कितने हैं,
सेपल्स है 5, सेपल्स है गैमोसेपैलस, गैमोसेपैलस, तो के 5 है, इधर फ्यूज्ड है। एस्टिवेशन क्या है? वाल्वेट एस्टिवेशन, ठीक है। सेपल्स का तो वाल्वेट एस्टिवेशन हम लोग पढ़े भी थे। और ऑब्वियसली गैमोसेपैलस कंडीशन हो गया तुम्हारा फैबेसी, ठीक है। तो वाल्वेट एस्टिवेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोलनेसी में। सोलनेसी में सेपल्स कितने हैं? 5 है, ओके। सेपल्स 5 है, गैमोसेपैलस कंडीशन है, तो इसका सिंबल वही होगा जो फैबेसी में था, गैमोसेपैलस, गैमोसेपैलस, जिसको हम लोग बोले K5 ब्रैकेट। और एस्टिवेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एस्टिवेशन अगेन वाल्वेट एस्टिवेशन। सो यहाँ पे ओनली ब्रासिका इम्ब्रिकेट है, बाकी फैबेसी और सोलनेसी में वाल्वेट एस्टिवेशन है, राइट। तो ऐसा टेबल बनाने से तुम लोगों को आसानी भी हो जाएगी कंपेयर करने में कि किसका क्या है, ओके। एंड ऑल्सो विथ सिंबल्स आई एम गिविंग यू, तो लास्ट में जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये सिंबल्स तुमको याद रहेंगे कैसे लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं करोला में। ম্যাম ওই যে সিম্বল গুলো লিখছি না 1 + 2 + ব্র্যাকেটে 2, ওটা মানে কিরকম ভাবে লিখছে একবার বলবেন? এটা তো তোর ভেক্সিলারি এস্টিভেশন, এটা স্ট্যান্ডার্ড পেটেল, এখানে উইং পেটেল, তারপর মাঝখানে মানে ভেতরের দিকে যেটা পেটেলটা থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে তোর কিল পেটেলস। তো এটা তো তোর ভেক্সিলারি এস্টিভেশন কে এক্সপ্লেন করছে, ওকে ম্যাম, বুঝেছি। হ্যাঁ। ঠিক আছে। এই করোলাতে আমি বোঝাচ্ছি। করোলা, how many petals are found in Brassicaceae member? Petals are 4. Polypetalous condition, তো C আমরা লিখবো 4, okay, polypetalous condition. And what is the estivation of petals? Estivation is valvate estivation. And what kind of corolla this is? Cruciform corolla. I had already mentioned it, cruciform corolla. Corolla is in the form of a X shape, cross shape. Crucifixion we say na, so that way. Acha, Fabaceae te how many petals are there? 5, ठीक है। Polypetal. नहीं, पॉलीपेटैलस भी नहीं बोल सकते क्योंकि 2 पेटल्स फ्यूज होते हैं। जनरली तो 2 पेटल फ्यूज होता है, मतलब तो यहाँ पे पॉलीपेटैलस स्लैश कुछ गैमोपेटैलस कंडीशन होता है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में पॉलीपेटैलस बोल सकते हैं, पॉलीपेटैलस प्लस गैमो 2 पेटल्स फ्यूज्ड, ठीक है। एस्टिवेशन क्या है? वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन ऑफ कोरोला, या फिर हम लोग बोलते हैं पैपिलियोनेशियस कोरोला, पैपिलियोनेशियस कोरोला, ठीक है। ये है कुछ फीचर्स एंड ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन ऑफ Hello? वेक्सिलरी। हाँ, লাস্টে বলেন প্যাপলিনেসিয়াস, ওটা একবার মানেটা বলতে পারবেন? papilionaceous actually it is a part of, like, it kind of explains vexillary estivation only. हम लोग vexillary estivation को papilionaceous estivation या papilionaceous corolla भी बोलते हैं because of the structure of it, okay, because it has that this and it has a very shiny and like a papilionaceae, it's a type of it was discovered first in a particular flower which belonged to this name was actually in that way given, तो उसके वजह से वेक्सिलरी को ही हम लोग पैपिलोनेशियस बोलते हैं बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द करोला। करोला थोड़ा शाइनी टाइप का होता है, नॉट वेरी व्हाट यू कॉल सॉफ्ट काइंड, ओके। अगर हम लोग देखेंगे फ्लावर को तो उसका जो अपीयरेंस है उसको बोलते हैं पैपिलोनेशियस, इसीलिए उसको बोला जाता है। एज सच इसका कोई हेड एंड फास्ट कोई एज सच डिस्क्रिप्शन नहीं है, ओके। नेक्स्ट
if we talk about Solanaceae member, petals क्या है? 5 है. Petals fused है, free है, क्या है Solanaceae में? Petals are basically fused. Gamopetalous condition है. तो gamopetalous, वेलवेट एस्टिवेशन yes, gamopetalous condition. तो हम लोग इसको मेंशन करेंगे C is equals to 5. फिर हम लोग लिखेंगे valvate estivation भी है करोला का. और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं एपीपेटालस कंडीशन. एपीपेटालस मतलब होता है कि एंड्रोशियम अटैच टू पेटल्स. एंड्रोशियम अटैच टू पेटल्स. ठीक है, ये हो गया सोलानेसी. क्लियर? तो हम लोग का कोरोला हो गया. अब आता है नेक्स्ट एंड्रोशियम. করলার কোনো স্পেসিফিক শেপ হবে না? সোলানেসিতে অ্যাজ সাচ তো তেমন কিছু শেপ অ্যাজ সাচ তো মানে থাকে না করোলা. জাস্ট নর্মাল মানে fused structure বলতে পারিস. It might look like bell shape or something like that, but circular type because actinomorphic আছে তো একটা circular টাইপের হতে পারে. বাট অ্যাজ সাচ কি শেপ অ্যাজ সাচ নেই. শেপ গুলো আমরা জেনারেলি রেফ্লোরেট ডিসফ্লোরেট ওরকম ভাবে আমরা পড়ি. বা ফ্যাবেসিতে যেরকম শেপটাই হচ্ছে ওরকম ভেক্সিলারি টাইপের, ভেতরে পর ভেতর ঢুকে যায় পেটেলস গুলো. সো দ্যাটস অ্যাজ সাচ কোনো শেপ নেই. নেক্সট coming to androecium. Androecium में basic thing is, first of all, how many stamens are present? 6 stamens. Okay, 6 stamens present. Tetradynamous condition. Tetradynamous condition का मतलब होता है androecium 2+4. I had already described the structure of tetradynamous. Okay, sometimes it can be didynamous. Sometimes didynamous. तो इसका होगा 2+2. So generally we are going to focus on this one, A 2+4. This one we are going to focus on. Okay, floral formula के हिसाब से. So this is about androecium, and androecium is not attached to anything. Neither it is attached to the petals or any part of the ovary and all. So androeciums को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? Polyandrous. Can we say it is polyandrous because it is not attached to anything? Yes, ma'am. Okay. And then Yes, ma'am. अगर हम लोग आए Fabaceae में, how many androeciums are present? 10 stamens. इसको क्या बोलेंगे? Diadelphous condition. Diadelphous condition. ठीक है, Diadelphi में what is the thing? Androecium 9 bracket plus 1. Okay, this is the feature. Okay, तो ये हो गया. जनरली हम लोग इस फॉर्मूला में डाइथिकस एंथर जनरली सब फैमिलीज में होता है एक्सेप्ट फॉर मालवेसी. मालवेसी में मोनोथिकस यूनिथिकस भी हो सकता है या फिर डाइथिकस बाइस्पोरेंजिएट भी हो सकता है. तो जनरल एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में डाइथिकस एंथर्स होता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू सोलानेसी फैमिली. सोलानेसी में androecium is basically 5 stamens present attached to petals. ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C5 यहाँ पे फ्यूज, androecium 5 ऐसा है और दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एपीपेटालस कंडीशन. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा androecium का फीचर. ओके, तो दिस इज अबाउट androecium. अब आता है लास्ट में क्या? गाइनीशियम.
लास्ट में आता है गाइनीशियम। अब बोलो गाइनीशियम में किसका किसका बाइकार्पेलरी सिनकार्पस है, किसका किसका मोनोकार्पेलरी है। यहाँ पे ये बाइकार्पेलरी है, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस, ठीक है। यहाँ पे है मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, और यहाँ पे है अगेन बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस। हो गया, ठीक है। हाइपोगाइनस क्या सब में होगा? हाइपोगाइनस ओवरी, हाइपोगाइनस सब में होगा। ये हाइपोगाइनस है, ओके, ये हाइपोगाइनस है, ये भी हाइपोगाइनस है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला में? G2 यहाँ पे सिनकार्पी है और ये हो गया G1 ये, एंड यहाँ पे होगा G2 ऐसा, और ये क्लियर। यस मैम। और एक चीज मैं गाइनेशियम में लिखाऊंगी, पहले ये इतना हो गया तो तुम लोगों का अंडरस्टूड? यस मैम हाँ, मैम फैबीसी में मॉड्यूल में लिखा है केलिक्स की जगह पे वैल्यूट स्लैश इम्प्लिकेट दोनों ही लिखा है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे विच इज देयर इन एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी में जिसका डायग्राम दिया हुआ है या जो मॉड्यूल में डायग्राम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो हम लोगों को वैल्वेट ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम मैम। दिया हुआ है वैल्वेट एस्टिमेशन का। तो अगर हम लोग पढ़ते भी है इम्ब्रिकेट, वो इम्ब्रिकेट रेयरली हो सकता है, जनरली वो वैल्वेट एस्टिमेशन ही दिखाता है। तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू व्हाट पिक्चर इज गिवन। ऑलराइट मैम, थैंक यू। ओके, हाँ ठीक है, चलो दिस मच इज डन। अच्छा, तो आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज, बस वही गाइनेशियम का ही कंटिन्यूएशन दिखाना है। जनरल, यहाँ पे जनरल फीचर्स होगा, अरे यार जनरल फीचर्स होगा, यहाँ पे सपोज ब्रासिकेसी, फैबेसी और सोलनेसी, ठीक है। अब देखो ये तुम लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। मैं क्या करूंगी, बिकॉज देखो यहाँ पे तो सारे फैमिलीज अभी ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम लोग का टाइम नहीं है। मैं बाकी सब फैमिलीज यहाँ पे ऐड करके ये अपलोड कर दूंगी, फिर क्लास में जाके समझा दूंगी, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अच्छा, इसको गाइनेशियम का कंटिन्यूएशन हम लोग कर देते हैं। गाइनेशियम, गाइनेशियम में और क्या क्या लिखना है? ब्रासिकेसी में क्या होगा? प्लेसेंटेशन, इसका होगा पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, formation of false septum, okay, that is replum, okay, initially unilocular, later on bilocular, initially unilocular, later bilocular। अच्छा, तो ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन भी हो सकता है, दिस इज असर्शन एंड दिस इज द रीजन, ठीक है। यहाँ पे एक असर्शन रीजन क्वेश्चन आ ही सकता है। तो ये हो गया प्लेसेंटेशन। फैबेसी का क्या होगा? प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मोनोकार्पेलरी ओवरी तो पता है, यूनिलॉक्यूलर जनरली ओवरी होता है, यूनिलॉक्यूलर, ठीक है, मल्टीपल ओव्यूल्स, ओके। एंड सोलनेसी का क्या होगा? एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ओके, मल्टीलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, तो मल्टीपल सीड्स भी होगा और मल्टीपल ओव्यूल्स।
ठीक है, ये हो गया गाइनेशियम। वन मोर थिंग, oblique septa एंड swollen placenta, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सोलनेसी का। दिस यू हैव टू रिमेम्बर, यूनिक फीचर। ओके, ये हो गया। लास्ट में आता है हम लोगों का फ्रूट। अब मैंने तुम लोगों को फ्रूट पढ़ाया है, ब्रासिकेसी मेंबर का फ्रूट क्या होगा? सिलिक्वा, हाँ सिलिक्वा और सिलिक्यूला। ठीक है, फैबेसी का क्या होगा? लेग्यूम होगा। और पॉड। यस, सोलनेसी का क्या होगा? कैप्सूल, कैप्सूल होगा। हाँ कैप्सूल होगा। और नहीं तो बेरी भी हो सकता है, बेरी और कैप्सूल। ठीक है ना, यहाँ पे एंडोस्पर्मिक कौन कौन सा सीड है? सीड के बेसिस पे अगर बोले, दिस इज नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। सीड्स आर स्मॉल, सब जरूरत नहीं है, ये भी नॉन एंडोस्पर्मिक है। एंड दिस इज एंडोस्पर्मिक। ठीक है, मल्टी सीडेड होता है, एंडोस्पर्मिक होता है, राइट। फ्लोरल फॉर्मूला, अब मेरे को इसका फ्लोरल फॉर्मूला बताओ। मैंने तो इतना सारा तुमको फॉर्मूला बताया, पूरा देखो, अब कैलकुलेट करो, फ्लोरल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे EBR, क्योंकि यू ई बैक्टिएट होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक जनरली होता है, जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है, बट हम लोग रखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक क्योंकि हम लोग ब्रासिका का पढ़ रहे हैं। देन हम लोग केलिक्स का लिखेंगे 2+2, करोला का लिखेंगे 4, हाँ, एंड्रोशियम का लिखेंगे 2+4 एंड गाइनीशियम का लिखेंगे बाइकार्पलरी सिनकार्पस। ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला ब्रासिकेसी का। ठीक है, फैबेसी का, लेग्यूमिनोसे का फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा? लेग्यूमिनोसे का फ्लोरल फॉर्मूला होगा कि हम लोग जाइगोमॉर्फिक लिख रहे हैं, बाइसेक्सुअल तो लिख ही रहे हैं, केलिक्स 5 लिख रहे हैं जो फ्यूज्ड है, करोला का हम लोग लिख रहे हैं 1+2+2 वाला फ्यूजन वाला पार्ट, एंड्रोशियम का लिख रहे हैं 9+1, 9 तो ब्रैकेट में, एंड गाइनीशियम का लिख रहे हैं 1 एंड हाइपोगाइनस। ठीक है, अगर हम लोग सोलनेसी का लिखते तो क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। ठीक है, केलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है, करोला 5 है, फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम 5 है एंड एपिपेटालस कंडीशन है, गाइनीशियम है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस। चलो इतना तक हो गया तुम लोगों का जनरल फीचर्स ऑफ ब्रासिकेसी, फैबेसी एंड सोलनेसी। हाँ ম্যাম, ওই যে অ্যাসারশন জিনটা আছে না, ওখানে কি হ্যাঁ ওই রিপনেমের জন্য ওই লেটার অন বাইলকুলার হয়ে যায়, মানে হ্যাঁ, পাশে এই যখন জন্য তো আমি রেপনেম থাকে না তখন অ্যাসারশনটা লিখে, হ্যাঁ এই জন্যই তো আমি অ্যাসারশনটা লিখেছি না। আই হ্যাভ রিটেন অ্যাসারশন ইজ ইনিশিয়ালি ইউনিলকুলার, লেটার বাইলকুলার। Why? Because formation of false septum occurs. ওকে। Okay, chalo with this we are done with morphology, so the rest of I'm going to write it down and I'm going to, हाँ বল ম্যাম একবার লাস্ট পেজটা দেখিয়ে দিবেন। কোনটা? এর আগের পেজ। ম্যাম ফ্লোরাল ডায়াগ্রাম গুলো দরকার নেই তো? এ কি, ওটা তো জানতে হবে। ফ্লোরাল ডায়াগ্রাম ছবি দিয়ে দিলে তারপর তোকে জিজ্ঞেস করবে কি কোন কোন ফ্যামিলির ফ্লোরাল ডায়াগ্রাম। আর হ্যালো ম্যাম, হ্যাঁ বলছি যেটা জানো ওভারি সুপিরিয়র না ইনফিরিয়র, মানে ওর যেগুলো কমন এক্সাম্পল, এই ফ্যামিলির কমন এক্সাম্পল গুলো দিয়ে টোটাল ফ্যামিলিটা মনে রাখতে হবে। মানে ও পিকচার থেকে সেরকম কিছু বোঝাতেও যায় না যে কোনটা ওভারি সুপিরিয়র না ইনফিরিয়র। ইনফিরিয়র, শোন তোরা একটা জিনিস মনে রাখ, আউট অফ অল দ্য 7 ফ্যামিলিজ ইনফিরিয়র ওভারি হচ্ছে গিয়ে তোরদের ইয়েতে
ওই অ্যাস্টেরেসি ফ্যামিলি। তুই গোটা দেখ 7খানা ফ্যামিলিজে অ্যাস্টেরেসি ফ্যামিলি ইজ দ্য only family with inferior ovary। ঠিক আছে, বাকি যত ফ্যামিলিজ আছে সব কিন্তু সুপিরিয়র ওভারি। So you can write it in this way. Like you can make a point like inferior ovary, how many families you have Asteraceae. Superior ovary, you have the rest of the families are superior ovary. ঠিক আছে, এবার তারপর আরেকটা আচ্ছা করতে পারিস, you can do is bicarpillary syncarpus কোন কোন ফ্যামিলিতে আছে। ওকে, bicarpillary syncarpus, monocarpillary is generally আমরা Fabaceae দেখি। ঠিক আছে, তো you can write it in that way. মানে you can make certain common features like কোন কোনটা ফ্যামিলিতে bicarpillary আছে, which families have hypogynous ovary, like that also you can create certain points। তাহলে if in the exam they ask you how many families are bicarpillary syncarpus, you'll be able to answer easily। ম্যাম আগে যখন 3টে ফ্যামিলি ছিল না ফ্যাবেসি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বল কোথায় গেল, দাঁড়া let me, হ্যাঁ এবার বলো আগে কোন ফ্যামিলি বলছিলিস। হ্যালো, ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ বল ম্যাম বল। বলছিলাম যে আগে যখন 3খানা ফ্যামিলি ছিল না, তো এনসিইআরটি অর্ডার যেটা ছিল হচ্ছে ফ্যাবেসি, তারপর সোলানেসি, তারপর লিলিয়েসি। তো তিনটেই মানে তিনটেতে মোনোকার্পিয়ারি, বাইকার্পিয়ারি, ট্রাইকার্পিয়ারি, তো ওই অর্ডারে মনে রাখতে হবে। এবার নতুন ফ্যামিলি গুলো আসার পর একটু প্রবলেম হয়েছে যে কি করে মনে রাখবো কি না রাখবো। তুই দেখ না নতুন গুলোতে জেনারেলি বাইকার্পিলারি আছে, ফ্যাবেসি মোনোকার্পিলারি আছে, বাকিগুলো দেখ বাইকার্পিলারি আছে। ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম। ওইভাবে মনে রাখ। এখানে এখন আর ট্রাইকার্পিলারি মানে লিলিয়েসি তো ট্রাইকার্পিলারি, ওকে ঠিক আছে, ওটা তোমার হাইপোগাইনাসই হবে। তো লিলিয়েসি আর ফ্যাবেসি ছাড়া বাকি ফ্যামিলিজ গুলোকে দেখ। বাকিগুলো সব বাইকার্পিয়ারি। হ্যাঁ বাইকার্পিলারি, মানে আর বল বল। বাকিগুলোকে তাহলে যেগুলো মোনোকার্পিলারি আর ট্রাইকার্পিলারি ওগুলোকে ছেড়ে যেগুলো আছে সেইগুলোকে মনে মনে রাখলেই বাকিগুলো মনে হয় মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ফ্যাবেসি তো সিম্পল, ফ্যাবেসি তো মোনোকার্পিলারি, তো সিম্পল মার্জিনাল প্লাসেন্টেশন দেখাচ্ছে, একই তো কার্পেল হবে ওরকম ভাবে। ঠিক আছে, ফ্যাবেসিটা সিম্পল আছে, লিলিয়েসি তো ট্রাইকার্পিলারি, মোনোকট তো জেনারেলি ট্রাইমিরাস অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখায়। ঠিক আছে, তো ওইভাবে দেখলে। সো ফার্স্ট অফ অল এই চার্টটা, দিস চার্ট আই উইল গিভ ইট টু ইউ। ঠিক আছে, ক্লাসে যা ডাউটস আছে ওগুলো এক্সপ্লেন করে দেবো চার্টে, অ্যান্ড দেন এই চার্টটা আই থিঙ্ক ইজ এনাফ ফর ইউ টু স্টাডি। তাহলে তোদেরকে বই খুলে পড়তে হবে না। তো ফ্লোরাল ক্যারেক্টার্সটাই জেনারেলি কোয়েশ্চেন করে। ম্যাম বাকি ফ্যামিলিজ গুলো অ্যাড করে দেবো? হ্যাঁ আমি করে দেবো, চাপ নেই, আমি এক্সপ্লেনও করে দেবো ক্লাসে। ঠিক আছে, ओके अच्छा चलो बाय बाय। मैम आप नोट्स पोस्ट करेंगे? थैंक यू मैम। हाँ कर दूंगी बाबा, डोंट वरी। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय।